ଇରାନ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ବା IRGC ନୌସେନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜର ଦୁଇଟି ବିଶାଳ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ବା MSC ଫ୍ରାନ୍ସେସ୍କା ଏବଂ ଏପାମିନୋଡାସକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନର ଏହି ସାହସ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଇରାନର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ବା ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନ ନିଜର କୂଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନାର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ଲକେଡ୍ ବା ଅବରୋଧ ରହିଛି। ତଥାପି IRGC ଜାହାଜକୁ କବ୍ଜା କରିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଇରାନ ଏବେ ଆମେରିକାର ଚାପକୁ ଆଉ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। MSC ଫ୍ରାନ୍ସେସ୍କା ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ। ଏହାର ମାଲିକାନା ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଇରାନ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏପିଡୋନାମସ୍ ଏହି ଜାହାଜର କବ୍ଜା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ ଇରାନ ଏହା କରି ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ନଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକା ଏହାର ଜବାବ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ବା IRGCର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ କେବଳ ଇରାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ତେଲଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଏହି ଧମକ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧମକ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି କେଉଁ ବଡ଼ ରଣନୀତି? କାହିଁକି ଇରାନ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି? ଇରାନ କାହିଁକି ଏତେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ? IRGCର କମାଣ୍ଡର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ତେଲ କୂଅ ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଉଦି ଆରବ, UAE ଏବଂ କୁଏତ ପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମରିକ ଘାଟି ରହିଛି। ସାଉଦି ଆରବ, UAE ଏବଂ କୁଏତ ପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମରିକ ଘାଟି ରହିଛି। ଇରାନ ଜାଣେ ଯେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାକୁ ହରାଇବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ତେଲ ନାଡ଼କୁ କାଟିଦେଲେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯଦି ସତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଇରାନ ତେଲ କୂଅଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $200ରୁ $300 ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଭାରତ ପରି ଦେଶ ଯିଏ ନିଜର 80% ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପହଞ୍ଚରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଇରାନର ଏହି ଧମକ ହୁଏତ ଏକ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିନାଶର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଏବେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇରାନର ନୌସେନା ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଇରାନ କ'ଣ ସେହି କଟକଣାକୁ ଭୟ କରିବ? ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ପରମାଣୁ ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଜାରି ରଖିଛି। କେବଳ କାଗଜପତ୍ରର କଟକଣା ନୁହେଁ, EU ଏବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। EU ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡ୍ ନାଭାଲ ମିଶନ ବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ପରି ଦେଶ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବେ। ଆଧୁନିକ ରାଡାର ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇରାନର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହି ମିଶନ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ସହ ମିଶି କାମ କରିପାରେ ଯାହା ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ୟୁରୋପ ଏବେ ଇରାନ ସହ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ କଟକଣା ଏବଂ ନୌସେନା ମିଶନ କ'ଣ ସମାଧାନ ଆଣିବ? ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଇରାନକୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିପାରେ ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକ ଅତି କଠିନ ମୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାତିସଂଘର ଆଗାମୀ ପରମାଣୁ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ନାଟୋ ବା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସର ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନର ପରମାଣୁ ନୀତିକୁ ନାଟୋ କଠୋର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ନାଟୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ବିଶ୍ୱକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଟୋର ଅଭିଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ରୁଷ କଥା ବୁଝିବା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ବାରମ୍ବାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପରୋକ୍ଷ ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରୁଷ ଏବେ ନିଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ବା
परमाणु नीति रे परिवर्तन करिछि जहाँ अण परमाणु देशमानकर पई मध्य विपद सृष्टि करुछि। अन्यपटे चीन निजर परमाणु भंडार को अति द्रुत गति रे बढ़ाउछि। अमेरिकीय गोइंदा रिपोर्ट अनुसार चीन शह शह नुआ सिलो बा परमाणु मिसाइल्स लॉन्चिंग पैड निर्माण करुछि। सबुठ बड़ समस्या हेउछि चीन एहा उपरे कोनोसी पारदर्शिता रखुनाही। सेमाने कोनोसी आलोचना रे भाग नेबाकु मध्य मना करुछंती। खूब शीघ्र जातिसंघ परमाणु अस्त्र निषेध उपरे एक बड़ समीक्षा सम्मेलन हेबाकु जाउछि। नाटो सदस्य माने रूस एवं चीन को अनुरोध करिसंती जे सेमाने अमेरिका सह मिसी विश्व स्थिरता पई काम करंतु। प्रकृत में परमाणु नियंत्रण पाई होइतिबा पुराना चुक्ति गुड़िक जेमितिकी न्यू स्टार्ट ट्रिटी एबे प्रायतः मृत। रूस एही चुक्ति ओहरी जाइछि। नाटो चाहूँगी जे आउ एक शीतल युद्ध बा कोल्ड वार परिस्थिति सृष्टि न हो। एही परमाणु राजनीति केवल 3टी देश मध्य सीमित नुहे। जदि एही बड़ शक्ति माने अस्त्र बढ़ाइबे तेबे उत्तर कोरिया एवं ईरान परी देश माने आहुरी उत्साहित हेबे। यूरोप देश माने निजर सुरक्षा पाई अमेरिकार परमाणु छत्रछाया तले रहिबाकु बाध्य हेबे। सबुठारु बड़ प्रभाव पड़िबो साधारण जनतांकर उपरे। सामरिक खर्च बढ़िबा जोगु स्वास्थ्य एवं शिक्षा परे बजेट कमिजिबो। विश्व एक भयंकर वातावरण मध्यरे जीइबो। नाटोर एही चेतावनी हुए तो रूस और चीन पर एक संदेश हो पारे किंतु यह समग्र विश्व पर एक सतर्क घंटी। जदि आमे बुझामणा आड़ को न जाऊ तेबे आगामी पीढ़ी पर आमे एक सुरक्षित पृथ्वी छाड़ी जाई पारिबा नाही। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। बाल्टिक सागर उपरे रूसर विशाल बोमावर्षी विमान बम्बर्स एवं फाइटर जेट को नाटो वायुसेना मझी आकाश में अटकाई देइछि। एही घटना केवल एक साधारण सामरिक अभ्यास नुहे बरं यह पुटिन रूस एवं पश्चिमा देश गुड़िक मध्य बढ़ुवा शत्रुतार एक विस्फोरक प्रमाण। निकटरे रूस किछि सामरिक विमान जो पारमाणविक क्षमता संपन्न बोमावर्षी विमान मध्य सामिल थिले बाल्टिक सागर अंतर्जातीय आकाश सीमा देई नाटो सीमा आड़क माड़ी आसुथिले। जेतेबेले रूसीय विमान गुड़िक निजर ट्रांसपोंडर बंद करी उड़ुथिले नाटोर राडार सेमानकु चिन्हट करिथिला। तुरंत जर्मनी एवं ब्रिटेन रो टाइफून फाइटर जेट गुड़िक आकाश को उड़ीथिले एवं रूसीय विमान को घेरी जाइथिले एवं सेमानकु पछकु हटिबाकु बाध्य करिथिले। बाल्टिक सागर चारिपटे अधिकांश नाटो सदस्य देश अछंती। रूसर एक छोट अंचल कालिनिनग्राड एही समुद्र कूल अवस्थित जेउठारे रूस निजर मारात्मक क्षेपणास्त्र मुतयन करिछि। एठारे गुरुत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन एवं सामुद्रिक वाणिज्य पथ मध्य रही। रूसर एही पदक्षेप पछरे केतोटी मुख्य कारण रही। रूस पश्चिम देश मानकु जणाइबाकु चाहूछि जे यूक्रेन युद्ध सत्वे तार सामरिक शक्ति ह्रास पाई नाही। एही विमान गुड़िक नाटोर राडार क्षमता एवं प्रतिक्रिया समय बा रेस्पॉन्स टाइम जांच करिबा पई पठा जाइथाय। नाटो सदस्य देशगुड़िक मध्य भय सृष्टि करिबा पई पुटिनकर यह एक रणनीतिर अंशविशेष। नाटो एवं हाई अलर्ट रे अछि। सेमाने निकटरे स्टेड फास्ट डिफेंडर परी एक बड़ सामरिक अभ्यास करिसंती। एही इंटरसेप्शंस परे नाटो स्पष्ट करिछि जे सेमानकर प्रतिटी इंच जमी एवं आकाश को सेमाने सुरक्षित रखिबे। जदि रूस कोनोसी भूल करे तेबे यह आर्टिकल 5 अनुजाई एक पूर्णांग युद्धर परिणत हेबो। पाकिस्तान निकटरे तार अत्याधुनिक तैमूर आंटीशिप गाइडेड मिसाइल सिस्टम सफल परीक्षण करिछि। बालिस्टिक मिसाइल परीक्षणर ठीक एक सप्ताह पर यह पदक्षेप सारा विश्वर नौसेना विशेषज्ञों नजर को आसी। तैमूर होची पाकिस्तान एक अत्याधुनिक आंटीशिप क्रूज मिसाइल। यह समुद्र भितर थिबा शत्रु पक्षर बड़ युद्ध जहाज एवं एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वंस करने डिजाइन करा जाइछि। एही मिसाइल अत्यंत कम उच्चतार उड़ी पारे सी स्कीमिंग जहाँ फल शत्रु पक्षर राडार यह सहजरे चिन्हट करिपारिबो नाही। विशेषज्ञों मतरे एथिरे चीन वैषयिक सहायता रही जहाँ यह अधिक सूक्ष्म एवं घातक करिथाय। पाकिस्तान कहीं एवं नौसेना उपरे एते गुरुत्व देउछि। भारतीय नौसेना तुलन में पाकिस्तान नौसेना छोट तेणु सेमाने एपरी मिसाइल प्रस्तुत करुछंती जहाँ कम खर्चरे भारतर बड़ बड़ जहाज को विपद में पकाई पारिबो। पाकिस्तान चाहूँगी जे युद्ध समय भारतीय नौसेना जेपरी कराची बंदर को अवरोध करि पारिबो नाही। ग्वादर बंदर एवं चीन पाकिस्तान अर्थनैतिक कॉरिडोर को सुरक्षित रखिबा पई एही शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम अत्यंत जरूरी। भारतीय नौसेना पई यह एक नुआ चैलेंज। भारत पाखरे विश्वर सबुठारु द्रुतगामी ब्रह्मोस मिसाइल्स अछि किंतु पाकिस्तान तैमूर सिस्टम अरब सागर भारतीय जहाज गुड़िक पई नो गो जोन सृष्टि करने को चेष्टा करुछि। एकपटे पाकिस्तान एवं अन्यपटे चीन बढ़ुवा नौसेना शक्ति भारत को एबे तार एयर डिफेन्स सिस्टम को आहरी मजबूत करने को पड़िबो। तैमूर मिसाइल सफलता पछरे चीन हाथ थिबा स्पष्ट जना पड़ुछि। चीन तार CM401 किंबा YJ सीरीज मिसाइल्स टेक्नोलोजी पाकिस्तान को हस्तांतर तक करिथाई पारे। यह भारत महासागर शक्ति संतुलन को बिगाड़िबार एक प्रयास।
दक्षिण एशिया एबे एक नुआ अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता बा आर्म्स रेस आरंभ होईछि। प्रथमे बालिस्टिक मिसाइल एवं एबे आंटीशिप मिसाइल्स। पाकिस्तान यह परीक्षण दर्शाଉଛି जे सीमार उत्तेजना केवल जमीर सीमित नुहे बरं यह एबे गभीर समुद्र को मध्य व्यापीछि। तैमूर मिसाइल पाकिस्तान आत्मरक्षा पर एक बड़ सफलता हो पारे, किंतु शांति दृष्टिकोण यह चिंतार विषय। भारत निश्चित भाव में यार जवाबी रणनीति प्रस्तुत करिबो। चीन तार महाआकाश अभियान में एक बड़ परिवर्तन आने को जाऊँगी। चीन तियांगोंग स्पेस स्टेशन को जीवाई 2 जन पाकिस्तानी महाकाशचारी को चयन कर केवल पाकिस्तान पर एक बड़ सफलता नुहे बरं महाआकाश राजनीति में यह एक नुआ मोड़। चीन और पाकिस्तान मध्य बढ़ुवा यह बंधुता महाआकाश में भारत और पश्चिम देश मानकर की वार्ता बहन करुछि। प्रथमे जानिबा एही तियांगोंग स्पेस स्टेशन विषय। जितेबले अमेरिका चीन को अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन बा ISS रु बाद देला, चीन निजे एक एही स्टेशन तैयारी कला। महाकाश में विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षण करने एवं भविष्य में चंद्र एवं मंगल अभियान पर यह एक बेस भाव में व्यवहार करने। चीन एवं विश्वर विभिन्न देश को एठाकू आमंत्रण करुछि एवं पाकिस्तान एथिरे सबुठारु आगरे रहिछि। पाकिस्तान पाई यह एक ऐतिहासिक मुहूर्त। यही अभियान सफल हेले एमाने हेबे पाकिस्तान प्रथम नागरिक जी महाकाश को जीवे। चीन सहायतार पाकिस्तान तार स्पेस एजेंसी सुपारको को अधिक शक्तिशाली करने को चाहूँगी। आर्थिक संकट दे गति करुवा पाकिस्तान पाई यह विश्व दरबार में निजर इमेज सुधारिबार एक सुजोग। चीन तार बेल्ट एंड रोड प्रकल्प को महाकाश पर्यंत बढ़ाइबा को चाहूँगी। यह स्पेस सिल्क रोड बोली कहा जाउछि। भारतर गगनयान मिशन पूर्वर पाकिस्तान को महाकाश को पठाई चीन एक मनस्तात्विक चाप सृष्टि करने को चाहूँगी। पाकिस्तान को निज आड़क करी रखिबा पाई चीन सामरिक सहित महाकाश क्षेत्र में मध्य साहाय्य करुछि। भारत मध्य तार निजस्व रॉकेट गगनयान माध्यम भारत को महाकाश को पठाइबा पाई प्रस्तुति चलाई। भारत यह निजर ज्ञान कौशल करुवा बेले पाकिस्तान संपूर्ण भाव में चीन उपर निर्भरशील। यह दक्षिण एशियार एक स्पेस रेस बा महाकाश प्रतियोगिता को जन्म देइछि। महाकाश यह बंधुता केवल शांति पाई नुहे, यह द्वारा उपग्रह जरिया गुप्तचर वृत्ति एवं सामरिक जोगाजोग क्षेत्र में चीन एवं पाकिस्तान एकाठी होउचंती। यह भविष्य में भारतीय सेना पाई एक बड़ चैलेंज हो पारे। स्पेन सरकार प्राय 5 लाख अणवैध बा अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासी को निज देश में सामिल करने एक बड़ योजना आरंभ करिछि। ଯେଉଁଠାରେ अधिकांश यूरोपीय देश निजर सीमा बंद करुछंती, सेठारे स्पेन कहीं निज द्वार खोलुछि। यह पछरे कौन रही बड़ अर्थनैतिक रणनीति। स्पेन यही नुआ आईन अनुसार जो प्रवासी माने दीर्घ दिन धरी सेठारे रहउचंती किंतु सेमानकर पाखरे वैध कागजपत्र नहीं, सेमानकु एबे रेसिडेंस एवं वर्क परमिट दिया जिवो। आसंता 3 वर्ष मध्य प्रति वर्ष प्राय 3 लाख रु अधिक लोकंकु एही सुविधा देई समुदाय 5 लाख रु अधिक लोकंकु मुख्य स्रोत रे शामिल करबा। जो माने 2 वर्ष रु अधिक समय धरी सेठारे अछंती एवं सेमानकर कोनोसी अपराधिक रेकर्ड नहीं, सेमाने एहार लाभ उठाई पारिबे। स्पेन कृषि निर्माण एवं होटेल शिल्प में श्रमिकों प्रबल अभाव देखा देइछि। स्थानीय लोक मैंने यही काम करने को चाहूना। स्पेन निजस्व जनसंख्या वृद्धि हेबारे लागिछि। देश को चलाइबा पई, पेंशन सिस्टम को बंचाइबा पई एवं सेमानकु नुआ एवं युव कार्यशक्ति दरकार। जेतेबेले जड़े व्यक्ति वैध हो जाए से सरकार को टैक्स दिए, यह द्वारा देशर राजस्व वृद्धि हेबो। यही प्रोग्राम रे अन्य एक उद्देश्य मध्य रही प्रवासी मानक समाज रे मुख्य स्रोत को मिसाइबा। जेतेबेले जड़े प्रवासी अवैध भाव में रहे तार शोषण हेबार संभावना अधिक थाए। वैध हेबा परे सेमानंकु स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं न्याय पाइबार अधिकार मिलिबो। यह द्वारा देश में अपराध मध्य ह्रास पाइबो। स्पेन दक्षिणपंथी दलगुड़िक यार विरोध करुचंती। सेमानकर मतरे यह अधिक अवैध अनुप्रवेशकारी को प्रोत्साहन देव। देशर संस्कृति एवं संपद उपरे चाप पड़िबो। किंतु सरकार जुक्ति होउची प्रवासी माने समस्या नुहंती बरं समाधान। स्पेन रे अनेक भारतीय, पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी नागरिक मध्य अछंती जो माने बिना कागजपत्र रे सेठारे संघर्ष करुचंती। सेमानकर पई यह एक सुवर्ण सुजोग। एबे सेमाने निजर परिचय पत्र पाई परिवार सह सुखरे रही परिबे एवं भारत को मध्य अधिक विदेशी मुद्रा पठाई परिबे। स्पेन रो एही पदक्षेप सारा विश्व पाई एक उदाहरण। केवल पाचेरी तैयारी करी प्रवास समस्यार समाधान हो पारिबो नाही, एथिपाई मानविकता एवं दूरदृष्टि मध्य आवश्यक। विश्व बजार में आज सुना एवं रूपा दर में एक बड़ धरणर ह्रास देखा मिली। गोटे पटे मध्यप्राच्य युद्ध बंद होगापी सामयिक संधि बा सीज फायर खबर एवं अन्य पटे अमेरिकीय डॉलर मजबूत स्थिति, यही दुईटी कारण निवेशकों को चिंतार पकाई।
प्रथमे तथ्य उपर नजर पकाइबा। आज अंतर्जातीय बजार में सुना दर प्राय 2% ह्रास पाइथिबा बेले रूपा दर में प्राय 4% बड़ पतन देखा मिली। केवल सेतिकी नुहे, अमेरिकीय ट्रेजरी यील्ड वृद्धि पाइबा जोगु निवेशक माने सुना छाड़ी एबे डॉलर एवं बॉन्ड मार्केट आड़ को मुहाउछंती। सुना दर कमिबार सबुठारु बड़ कारण हेउची ईरान रो युद्ध विरतिर समय सीमा वृद्धि। साधारणतः जेतेबेले दुनिया रे युद्ध किंबा अस्थिरता देखा दिए लोक माने सुना को सबुठारु सुरक्षित निवेश भावी दियंती। एहाकु सेफ हेवेन बोली कहा जाए। एबे जेहेतु ईरान एवं अमेरिका मध्य उत्तेजना कमिबा परी मने होउची निवेशक माने मनरु भय कमी जाइछि। फलरे से माने सुना बिक्री करिबा आरंभ करिसेंती, जहा द्वारा दर कमिछि। सुना दर सहित डॉलर संपर्क सबुबेले ओलटा। जेतेबेले अमेरिकीय डॉलर मजबूत हुए सेतेबेले अन्य देशर मुद्रा व्यवहार करुवा लोकंकर पई सुना किनिबा महंगा हो जाए। डॉलर स्थिर हेबा कारणरू अंतर्जातीय बजार रे सुनार चाहिदा कमी जाए। अमेरिकार सरकारी बॉन्ड बा ट्रेजरी यील्ड वृद्धि पाइछि। यार अर्थ हेउची निवेशक माने बिना कौनसी रिस्क रे बॉन्ड रु भल रिटर्न पाउछंती। सुनारे कौनसी सुध बा डिविडेंट मिले नाही, एणु लोक माने सुना परिवर्ते बॉन्ड रे टंका लगाइबा को पसंद करुछंती। भारत में सुना केवल एक निवेश नुहे, यह आम संस्कृतिर अंश। जदि भारतीय बजार रे दर कमे तेबे विवाह ऋतु पाई ग्राहक माने उपकृत हेबे। भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बा MCX रे मध्य सुना दर रे ह्रास देखा मिल पारे। विशेषज्ञर मतरे जदि मध्यप्राच्य रे शांति बजाय रहे तेबे सुना दर आहुरी किछि दिन धरी निम्नगामी रही पारे। किंतु मने रखंतु, मार्केट अत्यंत अस्थिर। जदि पुणी थरे कोनोसी भू राजनैतिक संकट देखा दिए तेबे दर पुणी उपरकु जाई पारे। कल्पना करंतु एपरी एक देश जेउठारे आसंता पीढ़ी केबे भी सिगरेट किनी पारिबे नाही। हाँ आज्ञा, ब्रिटेन बा इंग्लैंड एही दिगरे एक बड़ पदक्षेप नेइछि। ब्रिटिश संसद रे पारित होइछि स्मोक फ्री जेनेरेशन बिल। एही निष्पत्ति परे सारा विश्व रे चर्चा चली कौन दुनिया ठारू धूम्रपान संपूर्ण शेष होइजिबो। ब्रिटेन सरकार एही नुआ नियम अनुसार जो मानकर जन्म 2009 जनवरी 1 किंबा तापरे होइछि सेमानकु केबे भी आईनगत भाव में तंबाकू बा सिगारेट बिक्री करा जाय पारिबो नाही। यार अर्थ होउछि प्रति वर्ष सिगरेट किनिबार बयस सीमा 1 वर्ष बढ़ी बढ़ी चलिबो। सेहीपरि भाव में आजिर जो किशोर माने अछंती सेमाने बड़ हेले मध्य केबे भी दुकान रु सिगरेट किनिबाकू सक्षम हेबे नाही। यह एक स्थायी प्रतिबंधक बा परमानेंट बैन। आपण भावुथिबे ब्रिटेन एते कठोर काहींकी हेला। यार कारण हेउछि जनस्वास्थ्य। धूमपान जोगु ब्रिटेन रे प्रति वर्ष हजार हजार लोक कर्कट एवं हृदरोग रे मृत्युवरण करुछंती। धूमपान जनित रोगर चिकित्सा पई ब्रिटेन रो नेशनल हेल्थ सर्विस बा NHS को प्रति वर्ष कोटी कोटी पाउंड खर्च करबाकू पड़े। सरकार चाहूचंती जे नुआ पीढ़ी निशामुक्त रहू, जहाँफल देश में कार्यक्षम जनशक्ति सुस्थ रहिबे। केवल सिगरेट नुहे, ब्रिटेन सरकार भेपिंग बा ई सिगरेट उपरे मध्य कटकणा लगाइछंती। आजिकाली पिलामानंकु आकृष्ट करिबा पई रंग बेरंगर एवं भिन्न भिन्न फ्लेवर रो भेप बाजार को आसुची। एही आईन एसबुर मार्केटिंग एवं पैकेटिंग उपरे कठोर नियम लागू करुची। कौनसी भी बड़ निष्पत्ति बिना विरोध रे हुए नहीं। किछि लोक जुक्ति करुछंती जे कोन खाइबा बा पीबा ताहा जणे व्यक्तिर व्यक्तिगत निष्पत्ति, सरकार एथिर हस्तक्षेप करिबा उचित नुहे। आशंका करा जाउची जे एही नियम परे सिगरेट कला बजारी मध्य बढ़ी पारे। तंबाकू मिलुथिबा टैक्स बंद हेले सरकारଙ୍କର आय उपरे एहार प्रभाव पड़िबो। ब्रिटेन एही पदक्षेप परे न्यूजीलैंड परि देश मध्य एहाकू अनुसरण करबाकू चिंता करुछि। भारत पई एहा एक शिक्षा। भारत में तंबाकू सेवन करुवा लोकंकर संख्या बहुत अधिक। जदि भारत भविष्य में एपरी किछि नियम आणे तेबे लक्ष लक्ष लोक लक्ष लक्ष युवकंकर जीवन बंचा जाई पारिबो। शेष में एतिकी कह जाई पारे जे ब्रिटेन एही साहसिक निष्पत्ति आगामी समय रे एक सुस्थ पृथ्वी गठन में सहायक हेबो। विश्वर सबुठारु बड़ ई कॉमर्स एवं क्लाउड कंपनी अमेजन AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक सहित $100 बिलियन एक विशाल पार्टनरशिप घोषणा करिछि। $100 बिलियन यह कौन साधारण निवेश नुहे, बरं यह AI इतिहासर सबुठारु बड़ चुक्ति। एही डील सहित अमेजन एबे माइक्रोसॉफ्ट एवं गूगल को एक बड़ चैलेंज देछि। अनेक लोक अमेजन को जानिचंती, किंतु एही एंथ्रोपिक किए? एंथ्रोपिक होउची एक AI गवेषणाकारी संस्था जहाकू ओपन AI बा चैट जीपीटी निर्मातार पूर्वतन कर्मचारी माने गठन करिसंती। सेमानकर सबुठारु लोकप्रिय AI मॉडल होउची क्लॉड एबे चैट जीपीटी को कड़ा टक्कर देउची। एंथ्रोपिक विशेषत्व होउची सेफ AI बा सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अमेजन एही सुरक्षित टेक्नोलोजी को निजर क्लाउड सर्विस बा AWS माने अमेजन वेब सर्विसेज सहित जोड़ाकू जाउची। एही $100 बिलियन चुक्ति द्वारा एंथ्रोपिक एबे अमेजन रो निजस्व चिप एवं कंप्यूटिंग पावर व्यवहार करी नुआ AI उद्भावन करिवो। अमेजन रो असली शक्ति होउची AWS।
दुनियार कोटी कोटी वेबसाइट एवं आप यही AWS सर्विसेस रे चलुची किंतु AI आसिबा परे सर्विस गुड़िक अधिक शक्तिशाली हेबो। एही डील पर व्यवसायी मैंने निजर ऐप तैयारी करबा पई Amazon क्लाउड व्यवहार करी अति सहजरे निजस्व AI चैटबॉट एवं एनालिटिक्स टूल्स तैयारी करि पारिबे। Amazon निजे तैयारी करथिबा AI चिप्स को एंथ्रोपिक्स व्यवहार करिबो एवं जहा फल AI ट्रेनिंग सस्ता एवं द्रुत हेबो। बड़ बड़ बैंक एवं सरकारी संस्था जो मैंने डाटा चोरी हेबा भय रे AI व्यवहार करू नाहंती से माने एबे सुरक्षित भाव में Amazon रो AI व्यवहार करि पारिबे। वर्तमान AI क्षेत्र में 3टी मुख्य गोष्ठी सृष्टि होईची माइक्रोसॉफ्ट प्लस ओपन AI बा चैट जीपीटी, गूगल प्लस जेमिनाई एवं Amazon प्लस एंथ्रोपिक। यही प्रतियोगिता केवल अमेरिका सीमित नुहे भारत भली देश पई यह एक बड़ सुजोग। भारतर आईटी शिल्प TCS, इन्फोसिस, विप्रो Amazon यही AI उपकरण गुड़ी को व्यवहार कर समग्र विश्वर ग्राहकों को सेवा जोगाइबे। यह भारतर AI स्टार्टअप गुड़िक पई नूतन सुजोग मध्य सृष्टि करिबो। अन्य पक्षरे अनेक साधारण कोडिंग एवं डाटा एंट्री चाकरी यही द्रुत AI जोगु विपद में पड़ पारे। $100 बिलियन एक बड़ परिमाणर अर्थ किंतु Amazon जाने जे जी AI को नियंत्रण करिबो से भविष्य में टेक्नोलोजी को नियंत्रण करिबो। वर्तमान से माने केवल एक बही विक्रेता किंबा डेलीवरी कंपनी नुहंती बरं से माने विश्व AI समस्यार समाधानकारी भाव में उभा होइचंती। से माने विश्वर सबुठारु बड़ डाटा सेंटर पालटिचंती जहाँ बिना AI विकास असंभव। तथापि एठारे किछि आह्वान रही। विभिन्न देशर सरकारी यही बड़ टेक कंपनी गुड़िक एकचाटिया प्रभाव को रोकिबा पई जांच आरंभ करिसंती। Amazon यही $100 बिलियन चुक्ति प्रमाण करे जे AI वर्तमान केवल एक शब्द नुहे बरं यह आमर भविष्यत। आज आमे जो इंटरनेट व्यवहार करूछु आगामी 5 वर्ष मध्य यह संपूर्ण बदली जिवो। Amazon एवं एंथ्रोपिक यही मिलन आमको एक नुआ दिगरे नहीं जिवो। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु।